Okay, so we studied the importance of service sector and how service sector developed in India and created a lot of employment opportunities, and even for our state Bihar, which does not have much resources, natural resources I mean, and after division of Jharkhand, it was only left with the fertile lands. So agriculture became our the major activity. So for us also this service sector holds a lot of promise. We can develop this service sector, and we have developed. I explained you yesterday how Bihar government is focusing on the education, because to develop service sector you need to provide good education, and that is why education services are being developed now. We will study this service sector. So the topic is division of service sector. Now service sector means people working to provide some service, कोई वो काम करते हैं, ठीक है, where they are not manufacturing anything, okay, where they are not manufacturing, they are not making something, but they are providing their service. So this division of services sector, see, service sector is divided into two parts: ए गवर्नमेंट सर्विसेज एंड बी नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि जैसे हम कहते हैं आम भाषा में गवर्नमेंट और प्राइवेट, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, वही है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। तो यहाँ हम सिर्फ उन्हीं नौकरियों पर ध्यान देंगे जहाँ हम कुछ बनाते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ अपनी सर्विस देते हैं, हम अपना काम करते हैं जो। नाउ here we see the service sector is divided into government services and non-government services. Now in the right side there is a box, government service sector. There you can see the different services under the government. What are the different services? That is, number one, military services, yani those people working in military. Number two, education services, those people working in the education department, the staff, teacher, officers, everyone. Then third is rail services, all the people who are working in the Indian Railways. Then bus services, those people who are working in the transport department. Then airlines services, those people working in the airlines, either staff or pilots or hostess, all the people. Then next is number 6, agriculture services, people working in the agriculture department of government. Then health services, all the people working in government health department and government hospitals, जो या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है या हॉस्पिटल्स में, जो भी लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, स्टाफ हो, डॉक्टर हो। नेक्स्ट इज नंबर 8, इंजीनियरिंग सर्विसेज, all the people either working as engineers or staff in the government. Number 9, financial services, so those people working in the finance department of government. 10, banking services, so people working in the government banks and other government services, and some other services that are there in the government. So these are all the different services in the government sector. See, number 8, government services. When people are paid for their work in different fields by central or state government, it is known as government services. ठीक है, सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? जहां सरकार आपको नौकरी दे रही है, दैट इज सरकारी नौकरी, दैट इज गवर्नमेंट सर्विस।
So when people are paid by the central or state government for their work, then it is known as government services. Some of the wider fields of government services are पुलिस सर्विसेज. देखिए पुलिस भी एक सर्विस है. पुलिस सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, इंजीनियरिंग सर्विस, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज. तो यहाँ आपको इसमें जितने भी ऑल द, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, स्टेट लेवल पर हो, सेंट्रल लेवल पर हो, पुलिस ऑफिसर्स, तो जितने भी मतलब सिविल सर्विसेज हैं. एक तो आपका जो एग्ज़ाम होता है या सिविल सर्विस या जो एसएससी वगैरह से जहाँ से भी जाएं, तो सिविल सर्विसेज हो गया. उसके अलावा इसमें जो इतनी सर्विसेज मेंशन की गई हैं, ठीक है, तो देयर आर सो मेनी सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट. दीज आर गवर्नमेंट सर्विसेज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज. यानी जो गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है मतलब प्राइवेट. Now in the box we can see non-government service sector. Number 1 banking services, यानी जो बैंक्स में काम करते हैं प्राइवेट, जो गवर्नमेंट बैंक्स नहीं है. नंबर 2 टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीकॉम से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, यानी जितने भी ये टेलीफोन कंपनीज, मोबाइल कंपनीज, टेलीविज़न कंपनीज, ये सब जितने चैनल वगैरह हैं सब टेलीकम्युनिकेशन. देन ट्रैफिक, नंबर 3 ट्रैफिक सर्विसेज. ट्रैफिक सर्विसेज में जितने भी लोग जहाँ तहाँ काम करते हैं. देन हेल्थ सर्विसेज, प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं, तरह तरह के क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं. देन नंबर 5 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, जो अपने आप सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं लोग, तरह तरह का सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. देन अदर नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज, और इसमें फिर बाकी जो दूसरे और तरह के नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज. सी, when the government regulated different programs are made available to the people through non government institutions, or people get benefit through the creation of these services by themselves, then it is known as non government services. यानी कि कहा जा रहा है कि ऐसे भी बहुत सारे सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन वो प्राइवेट लोगों के द्वारा दिया जाता है. वो डायरेक्टली गवर्नमेंट उसमें काम नहीं करती है. चाहे ऐसे हो या जो लोग अपने आप तरह तरह के काम कर रहे हों, ऐसी कोई भी जो सर्विस है, इन सबको हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है. जैसे कि देखिए, आप लोग का पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप जो है वो सैंक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट देता है, और उसके लिए लाइसेंस मिलता है आपको, और उसके लिए जो नियम कानून है और उसकी देखरेख है गवर्नमेंट करती है. लेकिन उसको कौन चला रहे हैं? तो आप लोग चला रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर दिस. तो इस तरह का कोई भी जो गवर्नमेंट देता है जिसके लिए लाइसेंस, और जो दूसरे लोगों के द्वारा, जैसे गैस एजेंसी वगैरह इतना होता है, या बहुत सारे काम हैं, ठीक है. अब जितने भी आधार है, ये सब अपडेट होता है, ठीक है. तो बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती है, प्राइवेट लोग उसको करते हैं, या फिर अपने आप जो लोग काम कुछ भी कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहा है, कोई सैलून चला रहा है, कोई पार्लर चला रहा है, कोई टेलर है, इस तरह से. सो ऑल दीज आर नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ, हाँ, यस यस ऑफ कोर्स, प्रोवाइड कर रहा है सरकार, लाइसेंस दे रहा है, वो आपको लाइसेंस दे रहा है, वो आपको नियम कानून बना रहा है, आपको देखरेख कर रहा है, लेकिन चला कौन रहा है? चला आप लोग रहे हैं, ठीक है. हाँ, गवर्नमेंट में नहीं आएगा. थोड़े गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है काम करने वाले लोग को, आप लोग देते हैं, जो भी स्टाफ रखते हैं, तो आप लोग अपना मैनेज करते हैं. खैर, चलिए देखिए, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फील्ड आर
बैंकिंग सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब देख चुके ऊपर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एंड आउट ऑफ दीज सर्विसेज, सम आर एडमिनिस्टर्ड एट बोथ द लेवल्स, यानी कि कुछ का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, कुछ का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। मेनली स्कोप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज आर सो वाइड दैट गवर्नमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट होना चाहिए। देखिए यह इफिशियंट, देखिए कहा जा रहा है कि कई ऐसी सर्विसेज हैं जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा तरह का उसमें काम होता है, और हर जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो सकता है नहीं, क्योंकि वो पूरे देश में है। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है, और प्राइवेट सेक्टर अपना सब चला रहे हैं, वो लोग भी अपना देख रेख करते हैं। उसी तरह एजुकेशन है। अब एजुकेशन में स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल, खाली अगर गवर्नमेंट ही पूरे स्कूल को चलाए पॉसिबल है, इतने स्कूल हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, इतना स्टाफ नहीं है गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी भरकम हो जाएगा काम। तो कुछ स्कूल्स गवर्नमेंट चलाते हैं, कुछ स्कूल्स प्राइवेट में चलता है। तो ऑल दीज आर, कहा जा रहा है कि सो वाइड, दीज सर्विसेज आर सो वाइड, मतलब इतना उसका कामकाज ज्यादा होता है कि उसमें गवर्नमेंट सिर्फ उसको देख रेख नहीं कर सकती। अब यहाँ एक स्टोरी दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। स्टोरी ऑफ गोविंदपुर विलेज, एक केस स्टडी दिया हुआ है कि किस तरह से एजुकेशन से डेवलपमेंट होता है। देखिए, सुरेश लिव्ड इन गोविंदपुर विथ हिज पेरेंट्स। सुरेश एक कोई पर्सन है जो कि गोविंदपुर गांव में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। दिस विलेज ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट इज इन बिहार, ये जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट का गांव है। सुरेश इज द एल्डेस्ट अमंग हिज 4 ब्रदर्स, सुरेश 4 भाइयों में सबसे बड़ा है। बीइंग एन एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल, सबसे बड़ा भाई है तो जिम्मेदार है। जवाहर, हीरा एंड आशुतोष आर ब्रदर्स ऑफ सुरेश, ये 3 और भाइयों के नाम हैं, जवाहर, हीरा और आशुतोष। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज शॉप कीपिंग ऑफ हिज फैमिली, तो जो इस परिवार का जो मेन गुजारे का जो सोर्स है, लाइवलीहुड का जो सोर्स है वो है शॉप कीपिंग, यानी दुकान चलाना। पीपल गेट देयर इसेंशियल्स फ्रॉम द शॉप एज इट इज इन द विलेज, क्योंकि गांव में दुकान है तो उससे लोग अपनी अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदते हैं। सुरेश वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज आफ्टर पासिंग मैट्रिकुलेशन इन 2nd डिवीजन, तो सुरेश जो है, जो कि मैट्रिकुलेशन यानी 10th का एग्ज़ाम जो है 2nd डिवीजन में पास किया, तो उसके बाद वो आगे पढ़ना चाहता था। बिकॉज ऑफ वीक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली ही स्टडीज डिसकंटिन्यू, लेकिन चूंकि परिवार में उतना हालात ठीक नहीं थे, इसलिए उसको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा। He decided to continue his studies by providing tuition to the children in the town, तो उसने सोचा कि मैं अपना ट्यूशन दे के बच्चों को अपना पढ़ाई जारी रखूं। He fulfilled his desire to study by teaching others, तो उसने दूसरों को पढ़ा के अपना पढ़ाई जारी रखा। His hard labor helped him and he passed intermediate, तो अपनी कड़ी मेहनत से उसने इंटरमीडिएट का भी एग्ज़ाम पास कर लिया। To continue his studies he came to the town, और आगे की पढ़ाई के लिए शहर आ गया। He got admitted in गया कॉलेज, गया, तो वो गया कॉलेज में एडमिशन ले लिया। He passed in 1st डिवीजन, ग्रेजुएशन कर लिया 1st डिवीजन में। आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ जॉब, और अपने ग्रेजुएशन के बाद वो नौकरी देखने लग गया। हेयर ऑल्सो ही गॉट सक्सेस एंड बिकेम एन ऑफिशियल इन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो यहाँ वो सक्सेसफुल रहा और एक गवर्नमेंट नौकरी उसको फाइनेंशियल सर्विसेज में मिल गई।
द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज फैमिली स्टार्टेड इम्प्रूविंग। अब उसके परिवार की, चूंकि उसका अच्छा नौकरी लग गया था तो परिवार की आर्थिक हालत सुधार होने लग गया। ही एनकरेज्ड हिज ब्रदर्स टू कंटिन्यू देयर स्टडीज। उसने अपने भाइयों को भी पढ़ने के लिए कहा। हिज ब्रदर्स ऑल्सो वर्कड हार्ड एंड गॉट जॉब सक्सेसफुल। उसके भाइयों को भी बड़ी मेहनत से नौकरी मिल गई। वन इन पुलिस सर्विसेज, एक को पुलिस सर्विस में, अदर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, थर्ड वन इन इंजीनियरिंग सर्विस, और तीसरे को इंजीनियरिंग फील्ड में नौकरी मिल गई। टुडे हिज फैमिली इज कंसिडर्ड एज हाईली एजुकेटेड। आज उनका परिवार को काफ़ी पढ़ा लिखा माना जाता है। Nowadays, father of Suresh is looking after his telephone booth along with his shopkeeping. तो आजकल सुरेश के पिताजी दुकान के साथ साथ एक टेलीफोन बूथ भी चलाते हैं। Thus, Suresh's family joined different services. तो इस तरह से सुरेश के परिवार ने अलग अलग सर्विसेज को ज्वाइन किया। Because of the expansion of service sector, family members of Suresh got work and their economic condition improved. क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ डेवलप हो चुका था, इसकी वजह से सुरेश के सभी परिवार के लोगों को नौकरी मिल गया, काम मिल गया, और उससे उनके आर्थिक हालत में सुधार हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा केस स्टडी दिया है कि किस तरह एक परिवार था जो कि सामान्य गरीब परिवार था, लेकिन उसमें एक बेटे ने पढ़ लिख के अच्छा नौकरी किया, और फिर सबों ने मेहनत से अपना अपना नौकरी पकड़ा, और धीरे धीरे उनकी परिवार का काफ़ी डेवलप हो गया। अब उनको अच्छा इज्जत से सब लोग वो करते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, और सब ये लोग अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छे से अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो ये कैसे एजुकेशन से और सर्विस सेक्टर से लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है, ये आपको एक छोटा सा केस स्टडी यहाँ दिया गया। नाउ, Importance of service sector. Service sector is very important in employment generation. सर्विस सेक्टर जो है ये रोजगार देने में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं, बहुत सारी नौकरियां इसमें बनती हैं। सर्विसेज एंड, ये सब पढ़ चुके हैं आप। सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सर्विस और एम्प्लॉयमेंट बताए थे आपको कि सर्विस से एम्प्लॉयमेंट पैदा होती है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से सर्विसेज बढ़ती हैं। ये आपको हम कल बताए थे कि जैसे अभी आपने देखा कि सुरेश ने नौकरी की, अब उसका परिवार का अच्छा हो गया इनकम, तो तरह तरह की चीज़ें वो अफोर्ड करेंगे, ठीक है। तो अच्छे, मैंने बताया था कि अच्छे जगह खाएंगे पिएंगे, अच्छे सैलून में जाएंगे, अच्छे तरह तरह की चीज़ें घर में खरीदेंगे, टीवी है, फ्रिज है, इन सब का फिर सर्विसिंग खोजेंगे। तो हर तरह के लोगों को इससे, यानी कि उससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ज़रूरत बढ़ रहा है, काम मिल रहा है लोगों को ज़्यादा। कोई एसी खरीदेगा, तो अब देखिए गांव में भी लोग एसी सब यूज़ करने लग गए हैं। मैं गया था जब गांव, तो पता चला गांव में भी कई लोग एसी लगाए हुए हैं। और तो अब समझिए कि अब एसी लग रहा है तो उसका वहाँ सर्विसिंग होगा। एसी लग रहा है उसका सर्विसिंग होगा, फ्रिज लोग रख रहे हैं उसका सर्विसिंग होगा, गाड़ियां रख रहे हैं तो उसका सर्विसिंग होगा। तो इससे क्या है, वहाँ काम मिल रहा है लोगों को, और जब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उससे क्या होगा, उससे फिर और ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत होगी। तो इस तरह दोनों जो है आपका एक दूसरे को डेवलप करते हैं। These two can be seen in the form of two parts of a balance. मतलब ये तराजू के दो पलड़े की तरह देखे जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक ही सिक्के के दो पहलू। एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर हेल्प इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए जो मैंने आपको बोला, यही लाइन लिख रही है कि अगर सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, यानी कि सर्विसेज, अगर ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल a farmer produces paddy and gets reward after working hard। ठीक है, एक किसान है
जो कि कड़ी मेहनत से जो है धान की फसल उगाता है और उसके बाद उसकी फसल सूख जाती है। When he cleans the rice and sells them in the polythene bag of 1 kg at a reasonable price in the market, he gets employment from the beginning to the end. तो एक किसान जो है वो सोचता है कि मैं बाज़ार में खुद ही चावल को पैक करके एक पॉलीथीन बैग्स में जैसे पैक करके बिकता है वो मैं पैक करके बेचूंगा। तो देखिए अब उसको धान जो उसने अपने खेत से लिया उसको उसने साफ किया, छिलका वगैरह हटाया, फिर उसको लेके सबको ठीक से वो करके अरेंज करके उसको पैकेट्स में पैक करके 1 केजी के मार्केट में बेच दिया। तो उसे काम मिल गया अपना, ठीक है, बीच में उसे दूसरे किसी को देना नहीं पड़ा कमीशन वगैरह, अपना वो खुद ही मार्केट में बेच रहा है। इफ द फार्मर वांट्स टू ट्रेड, he can trade on large scale and provide opportunities to more and more people. तो मान लीजिए कि अगर वो कामकाज चलने लगता है, बेचने लगता है ठीक से, और वो चूँकि काफ़ी उसकी अगर पैदावार होती है, बड़े पैमाने पर वो बेचना चाहता है बाज़ार में, तो वो और लोगों को भी अपने साथ नौकरी पर काम पर रख सकता है जो उसकी मदद करें काम में। इफ़ द फार्मर गेट्स टेक्निकल ट्रेनिंग एंड नॉलेज then he can increase his income also. अगर उसको उसमें कुछ और टेक्निकल उसको ट्रेनिंग दे दिया जाए अपने काम के बारे में तो वो अपना इनकम और बढ़ा सकता है। 2 मेन फैक्ट्स आर क्लियर फ्रॉम अबव एग्जाम्पल। तो ये ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए उससे एक दो बातें साफ है। फर्स्ट, अ फार्मर ओपन्स वाइडर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक किसान जो है ऐसा करके उससे और ज़्यादा रोजगार पैदा कर लेता है। ही इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थ्रू हिज लेबर एंड स्किल विच कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ सर्विस। दूसरा, जब वो टेक्निकल ट्रेनिंग उसको मिल जाता है, वो काम को अच्छे से सीख लेता है, तो वो अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव कर देता है, यानी कि जो बेच रहा होगा वो और अच्छा तरह से अच्छा क्वालिटी का बेच पाएगा अगर वो साफ सफाई का ध्यान रखे, ठीक से पैकिंग करना जान जाए और अच्छे से उसको जो है सफाई करने का उसको सीख जाए, तो उसका क्वालिटी जो है चावल का जो पैक करेगा या बेचेगा उसका इम्प्रूव हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा अपना, ठीक है, अपनी मेहनत से, अपनी उसकी कुशलता से, जिससे कि उसका जो है ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। तो इस तरह से सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रोज़गार मिलेगा। जब वो अपने साथ और लोगों को रखेगा तो रोज़गार मिलेगा ज़्यादा लोग को। सेकेंडली, व्हेन क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी इम्प्रूव्स इट कैन बी सोल्ड एट अ हाई प्राइस। और जब उसके क्वालिटी उसका बढ़ गया चावल का तो उसको और ज़्यादा दाम पर वो बेच सकता है, ठीक है। द इंक्रीज इन क्वालिटी इज नोन एज वैल्यू एडेड। तो ये जो उसने क्वालिटी इंक्रीज किया, जैसे हो सकता है पहले जब वो चावल बेचता था तो वो ठीक से पैक नहीं होता हो, उसमें कंकड़ है, गंदगी वगैरह रहता हो, अब जब उसको वो साफ करके बेच रहा है बढ़िया से, तो क्या है कि उसका क्वालिटी बढ़ गया तो उसका ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो द इंक्रीज इन क्वालिटी इज नोन एज वैल्यू एडेड। तो ये जो उसका क्वालिटी इंप्रूव हुआ उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। उसमें वैल्यू ऐड हो गया। पहले जो वो अगर 20 रुपए केजी बेच रहा था तो अब उसको वो 30 रुपए केजी बेच सकता है। तो ये 1 केजी का जो वैल्यू बढ़ गया 10 रुपए, इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। और प्राइस क्यों बढ़ गया उसका? क्योंकि उसका क्वालिटी इंप्रूव कर गया। तो इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। जब किसी भी प्रोडक्ट का, जब किसी भी कमोडिटी या गुड्स का हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं या उसमें और किसी तरह का इंप्रूवमेंट करते हैं जिससे कि उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो ये हो गया वैल्यू एडिशन। नाउ, रोल ऑफ सर्विसेज इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे कि सर्विसेज से कैसे एम्प्लॉयमेंट पैदा होते हैं। ऐसे तो मैंने आपको अभी समझाया, उसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए,
सर्विस सेक्टर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, इधर इट इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। सर्विस सेक्टर में अगर नौकरी है तो वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। ह्यूमन वांट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे विथ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि लोग गांव में भी एसी लगा रहे हैं। पहले गांव में लोग पंखा भी नहीं लगाता था, वैसे ही अपना खुश रहता था। फिर बिजली आई तो पंखा यूज़ करने लग गया, कूलर यूज़ करने लग गया, और उसकी इनकम बढ़ी तो आज उसको एसी भी यूज़ कर रहा है। मैं एक आदमी को जानता हूँ गांव में जो कि ऑटो चलाता है और वो एसी यूज़ करता है। हमारे गांव में सुधा एक आदमी है जो टेम्पो चलाते हैं और एसी चलाता है घर में। हाँ, बोलता है कि दिन भर सर गर्मी में काम करते हैं तो कम से कम रात में सोए तो ठीक से। ठीक है, अपना जुगाड़ कर लिया कि बिजली बिल ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो है जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ रही है या जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होगा। इंडस्ट्रीज आर एक्सपैंडिंग इन द इकोनॉमी टू फुलफिल दीज नीड्स ऑफ द पीपल। तो अब देखिए, ज़्यादा लोग पंखे, कूलर, एसी, फ्रिज खरीदेंगे तो ज़्यादा बनाना भी पड़ेगा, यानी उसके लिए इंडस्ट्रीज और बढ़ाने होंगे हमें उसको बनाने के लिए। तो न्यू फैक्ट्रीज आर बीइंग इस्टेब्लिश्ड। अब जो है नए नए फैक्ट्री जो है और लग रहे हैं। देखिए आज इतना ज़्यादा ये जो अप्लायंसेस हैं, होम अप्लायंसेस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, तो इतनी कंपनियां देखिए आज आ गई हैं। पहले एक दो कंपनियां होती थी, आज इतनी कंपनियां बना रही हैं, तो रोज नए नए तरह के मॉडल आ रहे हैं। तो इसके कहीं फैक्ट्रियों में बन रहे होंगे, तो उनको बनाने के लिए नए नए फैक्ट्रियों की ज़रूरत है। तो न्यू फैक्ट्रीज आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, द बेसिक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलपिंग विद दीज फैक्ट्रीज। तो अब जब नई नई फैक्ट्रियां बन रही हैं तो उसके ज़रूरत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हो रहे हैं। अब फैक्ट्रियों को ज़रूरत क्या चाहिए, फैक्ट्री तक सड़क चाहिए, ट्रांसपोर्ट सुविधा चाहिए, गाड़ियों की सुविधा चाहिए सामान लाने ले जाने के लिए, बिजली की सुविधा चाहिए, अच्छा वहाँ पर आपको पावर का फैसिलिटी चाहिए। उसके बाद बैंकिंग फैसिलिटी, आसपास में कोई बैंक भी होना चाहिए, उसका जो एटीएम वगैरह जो भी हो, ताकि फाइनेंशियल उसको डीलिंग हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, तो जैसे जैसे फैक्ट्रियां बन रही हैं तो आज इसलिए देखिए हर जगह सड़कें अच्छी बन रही है, हर जगह बिजली के फैसिलिटी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बैंक्स जगह जगह जो है खोले जा रहे हैं, ब्रांचेस जो है एटीएम खोले जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे नई फैक्ट्री लग रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूर डेवलपमेंट होता है। देखिए, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लिटरेट, सेमी लिटरेट एंड इलिटरेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब देखिए कि जब जहाँ फैक्ट्री बनेगी वहाँ सड़क चाहिए। अभी जैसे देखिए आपको बता रहे हैं, कंकड़बाग जो है, कंकड़बाग थाना के पहले जो गायत्री मंदिर वाला रोड है, गायत्री मंदिर का जो रोड है, वो रोड अक्सर जो है टूटा फूटा रहता था, डैमेज रहता था बहुत सालों से, आज से नहीं 25, 30, 40 सालों से। अब वहां पर बन गया एक हॉस्पिटल बन गया, मेडिवर्सल हॉस्पिटल, ठीक है, मेडिवर्सल हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल बन गया। अब उस हॉस्पिटल के चलते वहां पर देखिए फर्स्ट क्लास रोड बना दिया, फर्स्ट क्लास रोड, बिल्कुल चौड़ा सड़क बन गया है। अब लोग उस रोड से आने, पहले कोई उस रोड से आता जाता नहीं था, ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी वगैरह था उस रोड। अभी देखिए उस रोड में इतना ट्रैफिक हो गया है, वहां पर जाम लगा रहता है, इतना गाड़ियां आने जाने लगी हैं उस रोड से, क्योंकि बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड बन गया है। तो देखिए हॉस्पिटल बना तो वहां पर रोड बना,
रोड बनाने के लिए वहाँ लेबर को काम मिला होगा रोड बनाने के लिए, यानी उस रोड को बनाने में हर तरह का पढ़ा लिखा इंजीनियर, अनपढ़ आदमी, मजदूर सब काम किया वहाँ पर, तो उनको काम मिला। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए रोड बना, बिजली का पोल, बिजली जाएगी, वायर्स जाएंगे तो पोल लगेगा, तो वहाँ भी हर तरह का आदमी इंजीनियर से लेके और लेबर तक सब काम करेगा, उसको काम मिलेगा। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लिटरेट, पढ़े लिखे, सेमी लिटरेट, थोड़ा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, एंड इलिटरेट या अनपढ़ भी है तो वो अपना काम करेगा, मैनुअल लेबर वर्क करेगा, शारीरिक काम करेगा, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। दीज लिटरेट्स, इलिटरेट्स एंड सेमी लिटरेट्स आर ह्यूमन कैपिटल। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, इंजीनियर हों, या कम पढ़े लिखे हों जो क्लर्क वगैरह हों, या अनपढ़ लोग हों जो मजदूर वगैरह हों, या और तरह के जो काम करते हैं, इस तरह का मैनुअल वर्क जो करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, ये सब जो क्या है, दे आर ह्यूमन कैपिटल, ये मानव पूंजी है। यानी दीज आर द रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल। An effort is to be made for the development in the education sector on large scale to strengthen human capital and make it more efficient. इसलिए एक हमारे एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने का प्रयास की ज़रूरत है, ताकि हमारे राज्य का जो ये ह्यूमन कैपिटल है इसको और मजबूत किया जा सके और इसको अच्छा बनाया जा सके। तो जैसा मैंने कहा कि ये बातें कही जा रही है और आज सरकार उन्हीं बातों पर अमल कर रही है कि आप देखिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना तेजी से बदलाव हो रहा है, सुधार हो रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इतनी तेजी से बदलाव किया जा रहा है, क्रांतिकारी, देखिए अभी बिल्कुल मतलब जैसा अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ बिहार के, ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि इतनी नौकरियां एक बार में सरकार ने दी और उसके बाद उस पूरे डिपार्टमेंट को बिल्कुल क्रांतिकारी ढंग से बदला जा रहा है। जो एक समझिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट था जो सबसे खराब काम करने वाले डिपार्टमेंट हो गया था सरकार का, जहां की लोग कोई काम नहीं करते थे, और वो आज के डेट में सबसे मॉडर्न तरीके से, सबसे नए तरीके से काम करने वाला, पूरा जो बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में काम चल रहा है। तो आज सबसे पिछड़ा हुआ डिपार्टमेंट था सरकार का, जहां कोई काम नहीं होता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहां आज सबसे ज्यादा काम उस डिपार्टमेंट में तेजी से हो रहा है। तो ये एक समझिए बिहार की एक बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इट इज हिस्टोरिकल अचीवमेंट एंड हिस्टोरिकल एफर्ट इज बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर एंड द ऑफिसर्स लाइक के पाठक एंड नाउ एस सिद्धार्थ, हु इज द करंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये बिल्कुल मतलब याद रखा जाएगा बहुत सालों तक कि ऐसा हुआ था बिहार सरकार, और ये मॉडल है पूरे देश के लिए। दिस इज ऑल्सो बीइंग डन टू शो अ मॉडल टू द कंट्री, कि देश में इसको करके दिखाया जाए कि देखिए शिक्षा में कैसे, देखिए आई हैव सीन, मैंने देखा है आईएएस अफसरों को जो टॉपर हैं, आईएएस टॉपर्स हैं अपने अपने बैच के, और उनकी पोस्टिंग है यूपी में और कहाँ कहाँ, और उनको वो एज ए डीएम, वहाँ डीएम के रूप में पोस्टिंग है उनकी, एंड इट इज अ चैलेंज फॉर देम। मैं आपको बताऊं 2008 की टॉपर थी, 2007 के टॉपर थे, ये लोग को यूपी में मिला, और उनके साथ उन्होंने कहा कि हमें चैलेंज यही मिला है कि कैसे हम स्कूल में टीचर्स का अटेंडेंस बढ़ाएं, कि स्कूल में टीचर्स आए, बच्चों को पढ़ाएं। वो हमसे आइडियाज मांग रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे हम ये करें कि टीचर्स आए स्कूल में और पढ़ाएं। यूपी का बता रहा, और बताया फर्स्ट पोस्टिंग मिला था, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है,
यूपी का श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, ये बॉर्डर लगता है नेपाल से, वहाँ पर है। तो वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी एज ए डीएम, ठीक है। और वो जो है डीएम के रूप में उनका चैलेंज यही था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाए, क्योंकि न बच्चे स्कूल जाते थे, न टीचर स्कूल आते थे पढ़ाने, और बड़ी खराब हालत थी यूपी की। मैं आज से आपको करीब समझिए 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो डीएम के सामने भी यही चैलेंज था कि कैसे हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार करें। आज देखिए, आज बिहार में ये पूरे राज्य स्तर पर किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा प्रयास है, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जानी चाहिए, ठीक है। काफ़ी मेहनत हर कोई कर रहा है, सरकार का भी विल पावर है, सरकार भी अपनी मजबूत डिटर्मिनेशन दिखा रही है कि नहीं हमें करना है, चाहे कितना ही लोग विरोध करें, पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज किया बहुत, जो है सब तरह तरह का कोशिश किया अड़ंगा डालने का, डिमोरलाइज करने का, अधिकारियों को उल्टे सीधे उनके खिलाफ बातें करके, कमेंट करके, आलोचना करके, तरह तरह की। आप देखिए इंटरनेट पर वीडियोज वायरल हो रहा था कि के पाठक पागल है, डॉक्टर आके कह रहा है कि वो पागल है, ये है वो है, तरह तरह की बातें की जा रही है सबके बारे में, कभी मुख्यमंत्री के बारे में, कभी अधिकारियों के बारे में। लेकिन उन सब के बावजूद आज देखिए काम उसी तरह चल रहा है, और चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, बढ़ रहा है आगे, धीरे धीरे आगे चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मॉडल होगा कल को पूरे देश के लिए, जो बिहार में अभी शिक्षा विभाग में चल रहा है, कि एक बिहार जो शिक्षा विभाग शिक्षा में इतना पिछड़ा हुआ था, मैंने तो किसी राज्य में ऐसा देखा ही नहीं है इतना, जो जिस तरह का आज बिहार में डेवलप हो गया है सिस्टम, ऐसा किसी राज्य में नहीं है फिलहाल। और जिस तरह से चल रहा है, मतलब ये कॉरपोरेट को भी पीछे छोड़े हुए, कॉरपोरेट फील्ड में भी इतना ज़्यादा ये नहीं होता है जितना इस तरह से चल रहा है यहाँ का डेवलपमेंट। तो नेचुरल है कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत ही तारीफ करने की जो बात है, और सरकार की है, चाहे अधिकारियों की है, और फिर टीचर्स भी, नए जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं उनका भी रोल है, वो भी अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। तो यही देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एन एफर्ट इज टू बी मेड फॉर डेवलपमेंट in the education sector on large scale to strengthen human capital and make it more efficient। देखिए यही लाइन लिखा हुआ है जो कि आज किया जा रहा है, ये लाइन लिखा हुआ है 15 साल पहले का। तो आप समझिए कि निश्चय ही सरकार के मन में होगा तभी इसको लागू किया है, नहीं तो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सरकार जल्दी तैयार नहीं होती है। कोई भी सरकार, बहुत तरह का उसमें चिंता होती है सरकार को कि ऐसा ना हो लोग खिलाफ हो जाए, अधिकारी खिलाफ हो जाए, ठीक है, शिक्षक खिलाफ हो जाए, बहुत तरह की बात होती है। तो निश्चय ही देखिए कि जो यहाँ लिखा गया है उसी को सरकार अभी लागू कर रही है, करके तो आप देख रहे हैं, आप थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं और आप उसको इन प्रैक्टिस भी देख रहे हैं कि हो रहा है आज के दिन। तो इसी तरह से हर विभाग में जो है, और हमारे लिए खास करके जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में सर्विस सेक्टर को हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए एजुकेशन को डेवलप करना होगा, और वही आज सरकार कर रही है। देखिए, ह्यूमन फोर्स विल बी यूटिलाइज्ड इन द इंडस्ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इफ द लेवल ऑफ एजुकेशन विल बी स्ट्रॉन्ग। देखिए दूसरी बात कहा गया कि इंडस्ट्रीज में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा अगर वो पढ़े लिखे होंगे। तो अगर शिक्षा का स्तर सुधरेगा बिहार में, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में भी काम मिलेगा। आज देखिए बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया की यही हालत है। मेक इन इंडिया का इतना हल्ला हुआ, बहुत सारे देशों से बात हुई कि यहाँ आप अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाइए, तो देशों ने मना कर दिया, बोले आपके यहाँ इतने स्किल्ड लोग ही नहीं है काम करने वाले, तो हम प्लांट कैसे लगा दें। तो साउथ में फिर भी हैं लोग, स्किल्ड हैं, लेकिन नॉर्थ में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम जब लोगों को उनका एजुकेशन देंगे, उनको स्किल्स ट्रेनिंग से देंगे,
तो नेचुरल है कि इम्प्रूव होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज नए नए लगेंगे। ठीक है, आज बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लग रहे हैं और अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों का स्किल्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और उसके लिए देखिए स्किल इंडिया मिशन भी चला, तरह तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब जगह स्टार्ट किए गए। अब ठीक है, जितना उसमें हो सका, बहुत सारा पैसा भी लोगों ने, मंत्रियों ने खाया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारा जो है स्किल इंडिया में काम हो रहा है। तरह तरह का ट्रेनिंग हर जगह दिया जा रहा है लोगों को कामकाज करने के लिए, तो उससे काफ़ी फायदा हो रहा है। As a consequence, production will increase and we will be successful in satisfying more and more human wants. तो अगर शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकेगा तो उससे हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडस्ट्रीज में काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे, एक खुशहाल जीवन जिएंगे। तो यहाँ देखिए नीचे एक मनरेगा का फोटो दिया हुआ है जिसमें लोग जो हैं अपना काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं काम कर रहे हैं। तो देखिए मनरेगा भी है जिससे कि बहुत सारे लोगों को काम मिला है, गाँव में भी, ठीक है, गाँव में, शहरों में, जहाँ भी है वही उनको काम मिला है, और उससे उनका फैमिली इनकम बढ़ा है। फैमिली इनकम बढ़ा है तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है, उनका जीवन में सुधार हुआ है। Many employment generation programs are seen at national level by Indian government and are being implemented by state government. ठीक है, बहुत सारे जो रोजगार के जो प्रोग्राम्स हैं जो कि नेशनल यानी कि केंद्रीय सरकार, भारत सरकार चला रही है, और जिसकी देख रेख जो है वो, चूंकि राज्यों में होता है काम तो राज्य सरकार उसकी देख रेख करती है। These are the following schemes which are seen by government in the country for employment creation. तो जो नीचे दिए गए हैं स्कीम जो कि देश में रोजगार बढ़ाने के लिए, लोगों को काम देने के लिए चलाए जा रहे हैं ये कार्यक्रम। These are different schemes which are running and shown with their year of starting. तो नीचे जो दिए गए कार्यक्रम जो चल रहे हैं और उनका कब शुरुआत किया गया वो साल बगल में दिया गया। देखिए क्या क्या है। नंबर 1 इज फूड फॉर वर्क। फूड फॉर वर्क आपको सब बता चुके हैं, स्कीम्स पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फूड फॉर वर्क, काम के बदले खाना, अनाज। 14 नवंबर 2004, 2004 में 14 नवंबर को यानी नेहरू जी के जन्मदिन पर इसको शुरू किया गया था। फिर है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये 1980 में शुरू हुआ था। रूरल, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं ट्राइसेम, TRYSEM, लिख लीजिए। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ट्राइसेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम था गवर्नमेंट का, TRYSEM, TRYSEM। इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नहीं, ट्रेनिंग द रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, TRY, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्राइसेम कहते हैं शॉर्ट में। बहुत ही पॉपुलर स्कीम रही, बहुत साल से चल रही है। 1979 में स्टार्ट किया गया था ट्राइसेम। फिर देखिए है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, RLEGP, RLEGP, पीछे आप लोग इसको डिटेल देख चुके हैं थोड़ा थोड़ा।
रूरल लैंडलेस, तो इसको रिवाइज करना है। देखिए पहले आप स्कीम्स देख चुके हैं, कब स्टार्ट किया, किन के लिए स्टार्ट किया गया, कहाँ शुरुआत किया गया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये सब आपको बहुत सारे स्कीम 7-8 स्कीम के पहले कराया गया था, उसको देख लेना है। RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये लैंडलेस लोग, जो ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, बिल्कुल गरीब लोग, उनके लिए शुरू किया गया था। ये हुआ 1983। उसके बाद है देखिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ये गांव के विकास करने के लिए कई सारी इसमें योजनाओं को मिला के एक नाम दिया गया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। ये भी बहुत बड़ा स्कीम था गवर्नमेंट का, 1980 में स्टार्ट हुआ, 20 अक्टूबर 1980। फिर जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 में। तो इसमें भी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसको एक कामकाज देने के लिए गांव में, शहरों में इसको स्टार्ट किया गया था। पुरानी कई स्कीमों को, इसको देख लीजिएगा, सबका डिटेल पीछे आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया गया था, जहां स्कीम्स के बारे में। जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ, 1989 में। और फिर है मनरेगा, जो कि ये भी पुरानी कई योजनाओं को मिला के इसका नाम फिर एक नया स्टार्ट किया गया था, नरेगा, और जिसको बाद में मनरेगा कर दिया गया था महात्मा गांधी के नाम पे। तो नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस कानून के तहत जो नौकरियां, कामकाज दिया जा रहा था लोगों को मिनिमम वेजेस पर, नरेगा, और उसको बाद में मनरेगा, महात्मा गांधी नाम जुड़ गया तो मनरेगा। Efforts are made to solve the problems of unemployment through the medium of above mentioned programs। कहा जा रहा है कि ये कोशिश किया जाता है कि सरकार के द्वारा कि लोगों की जो बेरोजगारी है उसको, ऊपर जो ये सब दिए गए प्रोग्राम, ये कार्यक्रम चला के लोगों को रोजगार दिया जा सके, बेरोजगारी को दूर किया जा सके। It is estimated by the government that above 62% of unemployed can be provided employment through these schemes। तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा आकलन किया गया कि जो बेरोजगारी है हमारे यहाँ लोगों को, उनको सरकारी स्कीमों के तहत कामकाज दिया जाए अगर, तो बेरोजगारी दूर हो सकती है देश की। Several efforts are also made to solve the problem of unemployment in the urban areas। उसी तरह कई प्रयास किए गए हैं कि शहरी इलाकों में जो बेरोजगारी, शहरों में भी लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं, तो शहरी इलाके में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए भी जो है कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। With the expansion of service sector, it is expected that 38% of urban unemployment can be solved। तो कहा जा रहा है कि अगर सर्विस सेक्टर को हम एक्सपैंड करें, बढ़ाएं, और तो लगभग 38% जो है, जो शहरी बेरोजगारी है उसको दूर कर सकते हैं सर्विस सेक्टर के द्वारा। शहर की बेरोजगारी जो है उसका 38% हम सर्विस सेक्टर से दूर कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड।
हाँ, तो कहा जा रहा है कि विथ द एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर इट इज एक्सपेक्टेड दैट 38% ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व। तो शहरी क्षेत्र में अगर सर्विस सेक्टर को बढ़ा दिया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह का काम दिया जाए, तो लगभग 38% जो बेरोजगारी है शहरी क्षेत्र में वो दूर हो जाएगी। मनरेगा is considered to be the major scheme in the world to make available the employment opportunities in the field of rural employment। दुनिया में आज मनरेगा को जो है बड़ी स्कीमों में गिना जाता है, जो कि गांव क्षेत्र में रूरल एरियाज में स्कीम काम देने वाली इस तरह की स्कीम है। तो इसको पूरी दुनिया में इसको गिना जाता है बड़ी स्कीम्स में। दुनिया की इतनी बड़ी जनसंख्या को गांव रूरल एरियाज में रोजगार देने वाली जो स्कीम है, ये ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है ये, ठीक है। तो जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या को जो रूरल एरियाज में हमारे देश में रहते हैं उनको इस योजना से रोजगार मिलता है। Poor people of Bihar in rural sector are not profited much by this because of brokers। एक मिनट, कहा जा रहा है दलालों के कारण बीच में जो ठेकेदार हो जाते हैं, दलाल हो जाते हैं, उनके कारण जो गांव के गरीब लोग होते हैं उनको फायदा नहीं होता है। वो अपना उनसे कमीशन काट लेते हैं। होता क्या है कि गांव के जो बेचारे गरीब अनपढ़ लोग होते हैं उनको जानकारी नहीं होता है स्कीम के बारे में। तो ये लोग उनको काम दिलाने के बहाने उनसे कमीशन लेते हैं और इसलिए उनका पैसा इनके पास कमीशन के रूप में चला जाता है। तो उनको जो फायदा उनको मिलना चाहिए काम से, जितना पैसा कमाई होना चाहिए उतना होता नहीं। This is the reason that sincere efforts are being made for removal of difficulties in the implementation of Manrega and providing more strong schemes for employment creation in rural sector। तो यही कारण है कि मनरेगा को अच्छे से लागू करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जा रहा है। अब ये डीएम और जो भी वीडियो वगैरह होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप चेक करिए जहाँ जहाँ कि कितना दिखाया जा रहा है लोगों को, उतना लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं, और कोई ऐसा तो नहीं कि जो अप्लाई किया उसको काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है?
तो और पैसा भी सीधे उनके खाते में भेजा जा रहा है ताकि उनसे कोई दलाली नहीं काट सके। उसके बावजूद लोग भी अपना जुगाड़ निकाल लेता है दलाली काटने का। इसलिए हेलो। हाँ, इसलिए देखिए अभी जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, घोटाला था। बच्चे आते नहीं थे, उनका फर्जी दिखा के और उनका पैसा जो है, क्योंकि वो हेडमास्टर के अकाउंट में जाता है लड़का खा, तो वो पैसा खा जाते थे। अब इसीलिए देखिए सारा ऑनलाइन डेटा अपलोड कराया जा रहा है और किस सारा उनका अकाउंट नंबर, फादर्स का किसका अकाउंट है, ठीक है, कौन चला रहा है, ये सब किया जा रहा है ताकि देखा जाए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में और कितना पैसा जा रहा है और उनका सारा एक्टिविटी का रिपोर्ट, क्लासेस हो रहे हैं, कितने क्लास हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उसका सारा रिपोर्ट जमा करिए। तो अभी टीचरों की हालत खराब हो रही है, मेहनत करना पड़ रहा है बहुत। इसी तरह नरेगा वगैरह में जो है, जब एक स्कीम आए थे कांग्रेस सरकार के अंदर, जितने भी स्कीम थे सबका कहा गया था कि रेगुलर जो रिपोर्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड करना होगा ताकि कोई भी आम जनता उसको देख सके कि कितना काम हो रहा है। लेकिन देखिए कोई डिपार्टमेंट उसको अपलोड नहीं करता था, कुछ करते थे लेकिन बहुत डिपार्टमेंट नहीं कर रहे थे। तो सरकार पर डिपेंड करता है कि कितनी ईमानदारी से सरकार कोशिश कर रही है। ऐसे में के पाठक जैसे लोगों की ही जरूरत होती है। इतने ढीठ हो जाते हैं लोग, काम नहीं करना चाहते हैं। उनको जब तक कोई गाली गलौज नहीं करे, इसलिए क्योंकि पाठक के बारे में बहुत गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करते हैं, जब बिना गाली के आप सुनबे नहीं करते हैं, क्या करेगा। कई बार अधिकारियों को भी बहुत गरिया देते थे, वे रास्ता क्या है, कैसे काम करेगा। लोग ढीठ हो जाते हैं, हम नहीं करेंगे, क्या करिएगा। इन्हें आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया इन द फॉर्म ऑफ सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। आज इंडिया देखिए, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। आज देखिए कनाडा में वहां से ज्यादा यहाँ के लोग रह रहे हैं, और वो भी ज्यादा पंजाब से। सर ये हम गए थे ना, ये जेरोक्स निकलवाने के लिए
हाँ। ये जेरॉक्स करवाने के लिए इसी का पीडीएफ था। हम्म। नीचे में यहाँ पे स्टूडियो है, तो प्रिंटर भी रखे हुआ है, फोटो खींचता है, जेरॉक्स भी निकालने वाला काम है। तो बस हमारे मकान के नीचे में एक रेंटर है, दुकान चलाते हैं, तो बंदा आया, तो उनके पास बहुत सारी फोटो खींच रहे थे, तो वहीं पे 6 जेरॉक्स निकलवा रहे हैं। तो बोला कि माला रिजेक्ट हो जा रहा है, अब निकाल लीजिए कि ये एक्सेप्ट हो गया, ये तो वीजा बनवाने के लिए कनाडा जाने वाला था। और वहाँ पे गुजरात में काम करता है, कि हमारे ही गाँव का है, गुजरात में काम करता है, तो वहाँ कंपनी का मालिक वो बंदा को भेज रहा है कनाडा लकड़ी मिल में काम करने के लिए। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि कनाडा में जो है बहुत ज़्यादा इंडियन है, और वो क्या हर तरह का काम करता है। तो विदेश आदमी जाता है तो इसका मतलब कोई भी कैसा भी काम कर सकता है। हाँ, ये सब ज़्यादा जाता है वहाँ हर तरह का काम कर रहा है, इसलिए कि वहाँ किसी भी तरह के काम के लिए अच्छा पैसा मिलता है यहाँ के कंपेरिजन में। तो वहाँ जाके वो गाड़ी भी चला रहा है, ठेला भी चला रहा है, सब्जी भी बेच रहा है, खाना भी बेच रहा है, सफाई भी कर रहा है, अच्छा काम भी कर रहा है। जैसे इंडिया वाले वहाँ जाके बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, काम करते हैं दुकानों में जहाँ तहाँ हर जगह, या और तरह का काम है प्लम्बर का, कारपेंटर का, क्योंकि वहाँ लोग हैं नहीं, इतना पॉपुलेशन नहीं है कि काम करने वाले। और जो वहाँ के लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा खोजते हैं, यहाँ के लोग उससे कम पैसे, यहाँ के लिए तो मतलब इंडिया से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन वहाँ के कंपैरिजन में कम होता है। तो वहाँ की कंपनी भी देखती है कि भाई हमको सस्ता में मिल जा रहा है काम, और अच्छा काम, वहाँ से ज़्यादा बढ़िया काम ये करता है, मेहनत से करता है। तो इसीलिए इंडियंस को इतना ज़्यादा हर जगह काम मिल रहा है, हर तरह का काम है। मैंने पढ़ा लिखा इंजीनियर है तो अपना उसका काम है, लेकिन विदेश जाने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत बढ़िया ही काम के लिए जा रहा है। कोई हर तरह के काम के लिए आदमी जा रहा है, क्योंकि वहाँ डिमांड है बहुत ज़्यादा, वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, वहाँ जो है सफाई, मैं बोल रहा हूँ कि लोग सफाई करने वाले भी, जो कार से उतरते हैं और जाएंगे और बाथरूम साफ करके अपना कार से फिर अगला जगह गए सफाई करना, ऐसा भी है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मतलब इवन इस तरह का है कि पता चलता है कि वहाँ बाथरूम की सफाई करते हैं तो उसमें भी अच्छा पैसा मिलता है, अपना गाड़ी रख लिया, जगह जगह जाके अपना कर रहा है सफाई। मतलब कहने का मतलब है मेरा कि हर तरह का काम, ठीक है, ये नहीं है कि विदेश जा रहा है। अब मेरा ही एक कुक था जो मेरा खाना बनाता था कॉलेज में, हॉस्टल में खाना बनाता था, तो वो मुझसे कहा कि सर हमको एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दीजिए। तो हम कहाँ, तो बोला विदेश कहीं जा, कोरिया या कहीं जाना चाह रहा था, या कहीं विदेश जाना चाह रहा था। बोला वहाँ बहुत अच्छा पैसा दे रहा है, वहाँ जो पैसा देगा 1 साल में वहाँ से काम करके आ जाऊँगा तो मैं अपने यहाँ एक बड़ा सा घर बना नेपाली था, बोला नेपाल में उसे हम बड़ा सा घर बना लेंगे। बोला 2-3 साल काम कर लेता है, उसके बाद ज़िंदगी ऐसे गुजारता है सब मेरे यहाँ लोग जो है, तो हम भी जा रहे हैं वहाँ काम करेंगे 1 साल, क्योंकि यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ सैलरी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो खाना बनाने का हो या किसी भी तरह के काम का हो। आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने क्यों वहाँ जाने के लिए परेशान, क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा पैसा मिल जाता है, यहाँ उतना पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ जो है, चूँकि वहाँ पैसा ज़्यादा वहाँ के इसमें मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यही यहाँ पर देखिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कैसे इंडिया के लोग हर जगह काम कर रहे हैं। तो इंडिया एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहा है, तरह तरह का सर्विस दुनिया के लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, हर तरह का सर्विस, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, ठीक है,
बहुत जगह प्रोफेसर्स भी हैं, पढ़े लिखे लोग, टीचर्स भी हैं, और फिर तरह तरह के लोग जो हैं, चाहे वो कोई वहाँ इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, और तरह तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का तो इतना डेवलप्ड है बाहर में मार्केट, तो उसका तरह तरह का रिपेयरिंग है, सर्विसिंग है, हर तरह का काम खाना है, वेज मतलब होटल रेस्टोरेंट चलाना है, ढाबा चलाना है, ठीक है, इस तरह का, या हर तरह का मार्केट चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, हर तरह का काम वहाँ करते हैं लोग। देखिए, इंडियन लेबर फोर्स हैज़ साइजेबल कंट्रीब्यूशन इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड सर्विस सेक्टर। कहा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी में जो दुनिया का सर्विस सेक्टर है उसमें इंडिया के लोगों का अच्छा खासा पॉपुलेशन है, संख्या है। अर्लियर ऑल्सो इंडियन लेबर फोर्स कंट्रीब्यूटेड मच टूवर्ड्स द हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफ इंग्लैंड। कहा जा रहा पहले भी इंडिया से लोग इंग्लैंड जाते थे तो वहाँ हेल्थ सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाना हुआ या वहाँ स्टाफ के रूप में काम करना हुआ, इसमें काफ़ी काम करते थे इंग्लैंड जाके लोग। इवन टुडे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लेबर फोर्स इन साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एक्नॉलेज्ड। आज भी इंडिया के जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनका अच्छा लोग कंट्रीब्यूशन मानते हैं। प्रायर टू दिस, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाज अ कॉज फॉर अ कंट्री, but because of contribution of skilled labor force and enhancement of knowledge, now it is considered as human capital। तो पहले एक समय था जब इंडिया का जनसंख्या जब बढ़ रहा था तो इसको एक समस्या हम मानते थे, लेकिन आज जब हमारे यहाँ शिक्षा और हर तरह का व्यवस्था सुधार हुआ है तो आज हमारे लिए बढ़ता जनसंख्या एक हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर स्किल्ड होंगे, काम करने वाले होंगे, तो हमारा वर्कफोर्स बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे हमारे लोग। तो आज वो ह्यूमन कैपिटल उसको समझा जा रहा है, जो कल पॉपुलेशन को एक बर्डन, बोझ समझा जाता था, आज उसको ह्यूमन कैपिटल समझा जा रहा है। In the perspective of changed population related analysis in economics, it is being weighed as human capital। तो यही कहा जा रहा है कि आज इकोनॉमिक्स में ये जो बदलाव हो गया है, मतलब हमारी जनसंख्या से जुड़ा हुआ जो बदलाव हुआ है कि पहले हमारे पास अनपढ़ लोग होते थे तो हमें पॉपुलेशन एक बोझ लगता था। आज हमारा पॉपुलेशन पढ़ा लिखा है, जनसंख्या लोग पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, तो वो आज हम उसको ह्यूमन कैपिटल की तरह देख रहे हैं। टुडे इंडिया इज नोन एज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द यूथ। आज देखिए, आज ये सही बात है, आज के डेट में हमारे देश में जो यूथ है, जो युवा लोग हैं 15 से 40 साल के बीच में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे यूथ की आज पॉपुलेशन है। और यूथ क्या होता है, उसमें एनर्जी होता है, वो काम करता है अच्छे से। तो यूथ ही जो होता है जो कि एक इंजन की तरह, जैसे एक रेलवे को इंजन खींचता है, उसी में पावर होता है, उसी तरह यूथ जो है खींचता है देश की इकोनॉमी को। तो यूथ हमारे पास सबसे ज़्यादा है दुनिया में। बिकॉज एनर्जाइज्ड यूथ क्लास हैज़ इंक्रीज्ड रिलेटिवली इन द होल पॉपुलेशन। हमारे जो पॉपुलेशन में अभी यूथ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, युवा लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दिस इज हेल्पफुल इन एक्सेलरेटिंग द रेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्या है, ज़्यादा अगर युवा लोग होंगे तो वो हमारे डेवलपमेंट का जो स्पीड है उसको बढ़ा देंगे, तेजी से डेवलपमेंट होगा क्योंकि युवा लोग तेजी से काम करेंगे। अब देखिए, तो ये तो हुआ एक ग्लोबलाइजेशन का। अब देखिए लिबरलाइजेशन रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन सर्विस सेक्टर by creating more and more opportunities through which all countries are benefited। मैंने बताया था कल आपको लिबरलाइजेशन कि जहां नियम कानून बहुत सरल बना दिए गए, जो
गवर्नमेंट के काम करने के तरीके थे, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि ऐसे कीजिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, उनसे परमिशन लीजिए, यहाँ फॉर्म भरिए, वहाँ ये करिए, जमा करिए, तो ये सब को बहुत ही सिंपल कर दिया गया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया। गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स, ठीक है, इन सब को सिंपल कर दिया गया। वन विंडो, इसको बोलते हैं वन विंडो की, एक ही विंडो से सारा क्लियरेंस मिल जाए, एक ही जगह सारा कागज, ये नहीं कि अब 10 जगह जाके अलग अलग कागज, एक ही जगह सारा कागज जमा हो। सिंगल विंडो इसको बोलते हैं सिंगल विंडो ऑपरेशन। तो इस तरह से सरल बना दिया गया कि जो कंपनियां बाहर से आ रही हैं या यहाँ की भी कंपनियां हैं, उनको ज़्यादा परेशानी न हो, उनको सुविधा हो। तो इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंपनियां यहाँ आने लग गई और यहाँ की कंपनियां बाहर काम करने लग गई। दोनों में दिक्कत होता था, यहाँ के लोगों को बाहर काम करने में दिक्कत होता था और बाहर के लोगों को यहाँ आने में दिक्कत होता था। तो दोनों तरफ आसान हो गया, यहाँ के लोगों के लिए बाहर काम करना भी सरल हो गया और बाहर के लोगों के लिए यहाँ काम करना, यहाँ कंपनी खोलना, ये सब आसान हो गया। इसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन। और यहाँ भी जो नियम कानून थे बहुत सारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनको भी सरल बना दिया गया ताकि उनको तेजी से अपना, अब पता चलता है, देखिए आप सरकार के पास गए, कोई एप्लीकेशन दिए, अब वो एप्लीकेशन लटका हुआ है, 5 महीने में क्लियर होगा, तब तक आप इंतजार करते रहिए, दौड़ते रहिए। अब उसको कर दिया गया कि नहीं, आप 1 हफ्ते में उसको दे दीजिए करके, तो आप 1 हफ्ते में आपको मिल जाएगा, आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो कामकाज है इकोनॉमी का, इंडस्ट्रीज का, वो फास्ट हो गया लिबरलाइजेशन से। तो देखिए यही कहा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन सर्विस सेक्टर। खास करके सर्विस सेक्टर के लिए ज़्यादा हुआ था। तो सर्विस सेक्टर में जहाँ लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। ये जब सिंप्लीफिकेशन हो गया रूल्स का, रेगुलेशंस का, प्रोसीजर्स का, by creating more and more opportunities through which all countries are benefited, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा हुए और सभी देशों को इससे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक अनपढ़ मेरा कुक था नेपाल का, लेकिन वो कह रहा है कि मैं सर वहाँ कोरिया जा रहा हूँ, या कहीं का बोल रहा था कोई देश जाने का कि वहाँ बहुत पैसा देता है। तो अब उसके लिए देखिए, एक समय था कि कोई सोच भी नहीं सकता था, और आज अनपढ़ लोग भी जा रहे हैं, धड़ल्ले से जा रहे हैं, क्योंकि आसान हो गया जाना, रूल्स रेगुलेशंस बहुत सिंपल हो गए, तुरंत परमिशन मिल जाता है, क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक है। तो आज लोग तेजी से बाहर काम करने जा रहे हैं, जैसे अभी आप देखिए कहें, और बाहर से भी लोग यहाँ काम करने, यहाँ नई नई कंपनियां, बाहर की कंपनियां यहाँ के अपना फैक्ट्री चला रहे, बहुत सारा काम कर रही हैं, तो इससे काफ़ी सबको फायदा हुआ। अब अभी क्या हुआ है कि कई देशों में जब से ये इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, मंदी आई हुई है, तो देशों ने थोड़ा अपना टाइट कर दिया है नियम कानून। अमेरिका, ये सब देशों ने अब वो बाहर वालों को थोड़ा नौकरी सोच समझ के दे रहे हैं, कि वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश में उनके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई हम लोग को नौकरी नहीं है, बाहर वाले यहाँ के नौकरी कर रहे हैं। तो अमेरिका जैसे उसने नियम कानून में थोड़ा बदलाव किया, या कई देशों ने कर रहे हैं कि भाई नौकरी जो है पहले अपने यहाँ के लोगों को दिया जाए, तब बाहर वालों को दिया जाए, नहीं तो हमारा इकोनॉमी चौपट हो जाएगा, हमारे यहाँ के लोग को इनकम बैठ जाएगा। तो जो आप अभी कहे कि बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो कारण यही है, जो वीज़ा का एप्लीकेशन आपने कहा कि किसी का रिजेक्ट हो जा रहा था, क्योंकि जो है इकोनॉमी सब जगह डाउन हो गई। अब यहाँ से आप जाएंगे, वो कहाँ से सैलरी देगा, पहले से लोग इतने हैं और वहाँ के लोग बेरोजगार हुए बैठे हैं। तो इसलिए जो देखा जा रहा है कि जो आने लायक है उसी को आने दिया जाए, नहीं तो उनको मना कर दिया जाए कि भाई मत आइए। इसीलिए रिजेक्ट हो रहा है, फोटो से नहीं रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत लोगों का इसीलिए जो है रोका जा रहा है जाने से।
देखिए, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू टुडे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज started performing activities related with producing and services in those countries where cheap labor force is available. तो ये कहा जा रहा है कि ये लिबरलाइजेशन हमारे ही देश में नहीं, बहुत से देशों में हुआ था, सब जगह, क्योंकि पूरी दुनिया में ये रूल्स चल रहे थे। WTO जो पूरे दुनिया में देखता है, तो वो हर जगह ये इम्प्लीमेंट कर रहा था रूल्स। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में खाली, मान लीजिए हमारा देश आसान कर दिया और दूसरा देश नहीं कर रहा है, तो लोग कैसे जाएगा? दोनों जगह या हर देश में होना चाहिए ना, हर देश से यहाँ के लिए, तो यहाँ भी हर देश के लिए होना चाहिए। तो बहुत से देशों में ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो अब कंपनियों ने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने देखा कि हमें कहाँ हमारा कॉस्ट, अब काम हर जगह कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, तो वो देखा कि हम सबसे सस्ता प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्शन हमारा सबसे सस्ता कहाँ हो सकता है, कहाँ हमें सबसे चीप लेबर मिल सकता है, कहाँ हमें सबसे चीप रॉ मटेरियल मिल सकता है, कहाँ हमारे लिए ज़्यादा जो है मार्केट हमारे लिए कहाँ ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ कम लगेगा। तो इस तरह से वो जो है, जो जहाँ पहले एक ही देश में फोकस होता था, क्योंकि बाहर काम करना दिक्कत होता था, आज वो, क्योंकि उनके लिए कोई रोक टोक नहीं रहा, तो वो इस तरह से अपना प्रोडक्शन को प्लान करने लग गए। आज इसीलिए देखिए सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां कहाँ मैन्युफैक्चर करवा रही हैं? चाइना, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, ये सब देशों में। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे चीप और क्वालिटी लेबर है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, लेकिन बहुत कम पैसे पर काम करता है। तो आज देखिए सब प्रेशर में आ गए। पहले शुरू में सब खिलाफ किए, पहले देखिए चाइनीज कंपनियों का मजाक बनाया जाता था कि अरे चाइनीज माल है, चाइनीज माल है, आज भी बोलता है चाइनीज माल है। चाइनीज सामान पर पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि सस्ता होता था, लेकिन उसका पहले क्या था, पहले जो बनता था चाइना में, जो वहाँ की अपनी सरकार बनाती थी, तो वहाँ का मॉडल क्या था कि हमें सस्ता सामान देना है लोगों को, बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं देना है। तो वो सस्ता बनाने पर उनका जोर था कि सस्ता रहे। इसलिए देखिए चाइनीज सामान दूसरे से कई गुना सस्ता रहता था, लेकिन हाँ बहुत क्वालिटी उसका, मतलब ये गारंटी नहीं रहता था कि हाँ कितना दिन चलेगा। लेकिन जब लोगों ने दुनिया भर में देखा कि भाई सस्ता सामान बिकना शुरू हो गया, तो उन्होंने देखा कि भाई चाइना में ही बनवाया जाए और वहां कहा जाए कि आप क्वालिटी का बनाइए। तो अब उनका जो अपने अपने जहां जिस देश में कंपनी जो बना रहे थे, उससे उनको वही क्वालिटी काफी कम दाम में चाइना में बनने लग गई। तो सारी कंपनियां मजबूर हो गई। पहले तो सब कंपनियों ने बड़ा खिलाफ किया चाइना का और वहां की कंपनियों का, लेकिन जब देखे कि और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि लोगों को तो भाई जहां सस्ता मिला तो वही खरीदेगा। जब सेम क्वालिटी हो और सस्ता मिल रहा है तो कोई क्यों महंगा खरीदने जाएगा। तो देखिए एक समय था, मैं आपको बता रहा हूँ 90s की बात बता रहा हूँ, 80s की बात बता रहा हूँ, जब हम लोग कोई भी क्वालिटी, जो भी अच्छा चीज आइटम होता था, टीवी, टेप रिकॉर्डर, ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता था, हम लोग देखते थे मेड इन जापान। मेड इन जापान को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता था कि जापानीज आइटम, तो मेड इन जापान खोजते थे, या फिर मेड इन यूएसए। तो ये ब्रांड होता था, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, ठीक है। तो वो वहां बनता था। नोकिया कंपनी देखिए फिनलैंड में, वहां बनता था नोकिया का मोबाइल। सैमसंग देखिए कोरिया से, एलजी है कोरिया से, ह्यूंडई है कोरिया से। तो और इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, सोनी है देखिए जापान से, फुजित्सु, सोनी, तोशिबा, जापान का तो बहुत, मित्सुबिशी कंपनी है जापानीज सब। तो जितनी बड़ी बड़ी फिलिप्स हो गई, अमेरिका की कंपनी है, ये सब जितनी कंपनियां हैं, तो इनका पहले इसलिए बिकता था कि भाई मेड इन जापान है, वहां की कंपनी है, वहां की विदेशी कंपनी, उनका सामान लोग खरीदते थे।
आज इन सब का मैन्युफैक्चरिंग सब चाइना से बन के आ रही है। और यही नहीं कि इंडिया में बिक रहा है, अमेरिका में भी बिक रहा है तो वो चाइना से बिक रहा है, चाइना से बन के जा रहा है। जापान में भी बिक रहा है तो चाइना से बन के जा रहा है। यूरोप में बिक रहा है चाइना से बन के, हर जगह जा रहा है चाइना या आसपास के देशों से, क्योंकि यहाँ क्वालिटी वही है मैन्युफैक्चरिंग की, और दाम बहुत कम है क्योंकि चीप लेबर है, चीप रॉ मटेरियल है। तो और यहाँ मार्केट बहुत है, देखिए एशिया में है, चाइना से बना इंडिया में आ गया, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया और दूसरा जो यहाँ का देश सब है एशिया का। तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, अब पहले जापान से आने में तो यहाँ बहुत ज़्यादा टैरिफ कॉस्ट लगता था, अमेरिका से आ रहा है, जापान से आ रहा है, अब यहीं बनने लग गया चाइना में, तो बगल में चाइना से आ गया, कोई कॉस्ट नहीं लगा उसको लाने में। तो इसीलिए हर चीज चाइना में लोग बनाने को मजबूर हो गए। पहले खिलाफ किए चाइना का, लेकिन देखिए अब कोई रास्ता नहीं, क्योंकि लोग तो सस्ता ही खरीदेंगे। आज देखिए आप विश्वास नहीं कीजिएगा चाइना ने किस तरह पकड़ लिया है। मैं एक कुछ दिन पहले किसी के लिए साइकिल खरीदने गया तो वो भी कह रहा सर साइकिल भी चाइना से बन के आ रहा है। मैंने आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कोई सोचेगा, या बीच में खिलौने बहुत आ रहे थे, आप समझिए साइकिल जैसा लोहा का चीज वो भी चाइना से बन रहा है। बोला इतना सब चाइनीज साइकिल हल्का होता है, कम दाम में, मजबूत वैसा है तो वैसा ही है। बनारसी साड़ी चाइना से बन के आ रहा है, आप विश्वास करिएगा, बनारसी साड़ी चाइना से बन के आ रहा है और उसका दाम यहाँ के साड़ी से बहुत कम है। तो ये सब फेक है क्या इंडियन बनारसी? फेक नहीं है, यहाँ का जो बनारसी बन रहा है उसका दाम है, वो भी बनारसी है, वो भी बनारसी, समझ गए। यहाँ का बनारसी साड़ी आप खरीदिएगा आपको पड़ जाएगा 20,000 30,000 कम से कम, वहाँ का बनारसी आपको 5,000 6,000 से मिलना शुरू हो जा रहा है। तो मतलब क्वालिटी भी लगभग वही है, बल्कि उससे बेहतर आपको दिखता है, उससे बेहतर क्वालिटी है। तो ये इसका सस्ता क्यों कर दिया है? तो लोग घाटा नहीं लगेगा? है, घाटा नहीं लगेगा चाइना लोग? नहीं घाटा लग रहा है ना, क्योंकि वो तो फायदा में कर रहा है, घाटा क्यों लगेगा। उसने क्या, देखिए उसने क्या किया, चाइना ने देखा कि बनारसी साड़ी का बहुत डिमांड है, बहुत वैल्यू है, यहाँ से कारीगर लोग को कुछ को लेके चला गया चाइना, और वहाँ अपना पूरा सबको ट्रेनिंग दिलवा दिया और वैसा पूरा सब डेवलप करा दिया, सब जो है बुनाई का इक्विपमेंट, और वहाँ थोक भाव में बना रहा है, यहाँ कम दाम में बेच रहा है, और लोग देखिए धड़ल्ले से जाके खरीद रहे हैं, क्योंकि जो उनको 30,000 पड़ता वही उनको 8,500 10,000 में पड़ जा रहा है। कौन नहीं लेगा बताइए, और उससे बेहतर दिखता है, यहाँ के साड़ी से बेहतर होता है। तो आप सोचिए कि ऐसी ऐसी चीजें जो कि यहाँ का मतलब ट्रेडिशनल चीज था, आज आप बता रहा हूं मैं, हर चीज जो भी आप सोच सकते हैं वो सब चाइना से बन रहा है। ठीक है, जो वैसी चीज है जो कि बाहर से लाई जा सके, जो थोड़ा सा भी वैल्यू का आइटम है, ठीक है, वो सब चीज चाइना से बन रहा है। जितना आप अपने आसपास चीज देख रहे हैं सब चाइना से बन रहा है। तो आज चाइना सिरदर्द पूरे दुनिया के लिए बन गया है, पूरे दुनिया के इंडस्ट्री के लिए आज चाइना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। कोई उसके सामने टक्कर नहीं दे पा रहा है, सबकी इकोनॉमी फेल है चाइना के सामने। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, कोई देश हो, गाड़ियां हैं, गाड़ियों में सब पार्ट चाइना से बन के आ रहा है, लोग लगा रहे हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है पार्ट। ये इलेक्ट्रिक आप देख लीजिए, जितना सब चाइना से आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि सस्ता है और क्वालिटी लगभग वही है या उससे बेहतर भी है बहुत मामलों में। आज देखिए जितनी नामी कंपनियां जिनका मार्केट था अपना अपना, सैमसंग, सोनी, एलजी, ठीक है, सब वहीं से बन रहा है। जो अपना अपना जिसका प्लांट था वो अपना प्लांट उसको बंद करना पड़ गया और चाइना में प्लांट उसी को शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि अपना प्लांट में बनाना महंगा पड़ेगा उसको। तो आज देखिए, अब आपको बताया कि जैसे मान लीजिए फिलिप्स का, अमेरिका के उसके प्लांट बंद हो गए और चाइना में बन रहा है, तो अब अमेरिका में उसमें अमेरिका के लोग काम कर रहे थे,
वहां का प्लांट बंद हो गया तो वहां के लोगों की नौकरी तो चल गई, और बन रहा है कहाँ? चाइना में बन रहा है। तो इसका कारण है कि सबकी इकोनॉमी अभी गड़बड़ाई हुई है, और इसीलिए सब लोग इतना भारत के आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई खरीद लो हमसे, मार्केट है ना भारत में, लोग पैसा खरीदने के लिए उनके पास जरूरत है, उनको मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, हर चीज चाहिए, तो वो आ रहे हैं कि भाई हमसे खरीद लो, हमसे खरीद लो, इसलिए आगे पीछे कर रहे हैं। और क्या, तो मोदी अपना दिखा रहे हैं, मोदी, अरे मोदी का क्या, वो देश का है, मोदी को कौन पूछ रहा है? मोदी को तो इसलिए पूछ रहा है कि भाई देश के लोग इनको मानता है बहुत, तो मोदी का इसलिए खूब स्वागत कर रहा है सब जगह जो, क्योंकि मोदी चाबी है इंडिया का, इंडिया के मार्केट का चाबी है। अब मोदी मजा लूट रहे हैं अपना, सब देश घूम के, जहां जा रहे हैं 5 स्टार एकदम स्वागत हो रहा है, एकदम मजा ले रहे हैं अपना जिंदगी का जो। तो ये देखिए मैंने बताया कि कैसे ये, और आज जितना भी जगह ट्रेड हो रहा है वो सब चाइना के फेवर में हो रहा है। आज हम मजबूर हैं, क्योंकि हमने देखिए फ्री ट्रेड, लिबरलाइजेशन कर दिया, कोई रोक जितना था हटा दिया कि कोई भी देश आके यहाँ सामान बेच सकता है, बना सकता है। अब हाल ये है कि हमारा सामान तो बिक नहीं रहा है, चाइना का सामान हमारे यहाँ खाली बिक रहा है, और हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते हैं अपने यहाँ बेचने से, क्योंकि आपने ट्रीटी साइन किया है, कानून अपनाया है आपने कि हाँ फ्री ट्रेड हम करेंगे, किसी को रोकेंगे नहीं, किसी पर टैक्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब चाइना का सामान आपके यहाँ, इसी को एक समय कहा गया इसको डंपिंग, यानी सामान का बाढ़ ला देना, सामान इतना ज़्यादा उतार देना मार्केट में कि लोग हाथों हाथ उसको सस्ता दर पे खरीद ले। आप जो कहे ना कि सर घाटा नहीं लगता है, घाटा नहीं लगता है, क्योंकि इतना संख्या में ये बेचते हैं तो उनको उनका प्रॉफिट मतलब बढ़ जाता है काफी। इसको कहा गया डंपिंग, डंप कर देना मतलब फेंकने की तरह गिरा दिया बाजार में, डंप कर दिया। अब इतना कम दाम पे डाल दिया मार्केट में कि सब हाथों हाथ खरीद लिया। आप एक सोचिए कि कोई सामान बिक रहा है 50 रुपए का, और अगले दिन चाइना से सामान आया 10-10 रुपए का, कोई खरीदेगा? एक भी आदमी 50 रुपए वाला? पूरा देश खरीदना चालू कर देगा 10 रुपए का। वही हुआ चाइना के सामान के साथ, उसकी बाढ़ जैसी आ गई, और उस बाढ़ को रोकने के लिए एक समय सरकार मजबूर हो गई, उसने लगाया एंटी डंपिंग ड्यूटी, टैक्स लगा दिया चाइना के सामान पर कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, आप इस तरह से हमारे ट्रेड को दबा रहे हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को दबा रहे हैं, आप इतना कम दाम पे इतना सामान बेच रहे हैं कि हमारा सामान बिक ही नहीं पा रहा है। उसको बोला गया एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि आप इतना सामान बेच रहे हैं तो आपको टैक्स आप पर लगाना पड़ेगा, जिसका बहुत विरोध किया चाइना ने और बाद में उसको हटाना पड़ा। और आज ये हाल इंडिया के साथ नहीं है, हर देश के साथ। अमेरिका में अमेरिका का सामान नहीं बिक रहा है, चाइना का बना हुआ सामान बिक रहा है। एप्पल जैसी कंपनी, सोचिए एप्पल जो प्रीमियम कंपनी है, मानी हुई, उसका अपना उसके बिल्कुल अलग वो बनाता है क्वालिटी का, जितने आईफोन जितने हैं सब, एप्पल आईपैड और आईफोन और जो भी है, मैकबुक, मैक प्रो, जो लैपटॉप वगैरह जो भी चीज़ है, सब वो मजबूर हो गया कि अपना अमेरिका में जो उसका प्रोडक्शन होता था उसको छोड़ के चाइना से प्रोडक्शन करवा रहा है, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है, क्या करेगा। तो आज एप्पल जैसी कंपनी भी, और शिकायत भी थोड़ा सा आ रहा है, चाइना से है तो उतना प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं मिल रहा है बहुत चीज़ में, तो इसलिए एप्पल के लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि पहले जैसा क्वालिटी नहीं है एप्पल। सोचिए कितना महंगा महंगा फ़ोन आता है एप्पल का, आईफोन जो है, तो वो सब भी चाइना से बन रहा है, चाइना या जो भी और देश हैं। तो ये कारण है कि चाइना सब पर भारी पड़ रहा है और सभी देश कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए आप चाइना का कहेंगे, चाइना कैसे, चाइना का ये हाल नहीं था एक समय था 80s में 90s में कि चाइना को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता था, न वहां से कुछ बाहर आता था न बाहर से वहां कुछ जाता था, क्लोज्ड इकोनॉमी था।
और चाइना को पिछड़ा कहा जाता था, तरह तरह का नाम दिया जाता था देशों के द्वारा। तो चाइना के जो नेता लोग थे वो लोग तय किए कि नहीं, हम लोग इस तरह से अब आगे नहीं चल सकते, हम लोग को बदलना हो, हम लोग भी बाकी देशों की तरह हम लोग को अपना इकोनॉमी खोलेंगे और हम लोग अपना क्योंकि वहाँ जो है इतना ज़्यादा सामान नहीं बनता था पहले, अपना लोकल लोगों के लिए जितना बनाना हुआ तो बनाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम भी जो है एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनेंगे, यानी दुनिया में हमारे इकोनॉमी का टक्कर कोई नहीं ले सके, ऐसा हमें बनना है। उसके लिए उन्होंने अपना बदलाव किया, अपना इकोनॉमी को खोला और बाहर के दुनिया के देशों से इंटरेक्शन शुरू किया। और उन्होंने तय किया कि नहीं, पहले चाइना को बड़ा नेगेटिव रूप में देखा जाता था, एक अलग तरह का देश जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, बस उसको कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता था चाइना, और कोई देश उससे किसी से कोई उसका बातचीत नहीं होता था, न किसी को वहां जाने दिया जाता था, न वहां से जल्दी बाहर लोगों को आने दिया जाता था। उसने उसको चेंज कर दिया, खोल दिया कि नहीं, अब हम भी दूसरे देशों को उन्हीं की तरह टक्कर देके दिखाएंगे। और पिछले 30 सालों में उसने आज करना शुरू किया, 2000 के बाद से उसने करना शुरू किया है, ठीक है। और जब उसने ये सब आईएएस में पूछा जा चुका है, आ चुका है क्वेश्चन। और आज देखिए, आज सब की जितने उस समय बनते थे, बॉस बनते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सबको पीछे छोड़ दिया। आज सब कोई जो है जमीन सूंघ रहे हैं उसके सामने। और अब तो जो डिप्रेशन आया है, तो उसके बाद से तो सब समझिए कि खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। और चाइना देखिए आज बादशाह बना हुआ है दुनिया का, इकोनॉमिक में भी, और वैसे तो उसको अपना ताकत है ही। तो ये जो है उसने एक प्लान्ड वे में किया। उसने कहा कि सबसे पहले हमें मार्केट बनाना होगा। मार्केट कैसे बनाएंगे? सस्ता सामान बना के। सस्ता सामान कैसे बनेगा? शुरू में इतना उनको सस्ता नहीं पड़ता था। उन्होंने क्या किया कि हम घाटा सहेंगे शुरू में। देखिए, जो करता है ना बिजनेसमैन, क्या करता है शुरू में कि अपना बाजार पकड़ने के लिए सस्ता बेचेंगे और सबका कस्टमर को खींच लेंगे अपनी तरफ। जब कस्टमर बढ़ जाएगा हमारा, तो धीरे धीरे दाम बढ़ाएंगे और प्रॉफिट हमारा बढ़ने लगेगा जब कस्टमर बढ़ जाएगा। तो यही किया चाइना ने। चाइना ने कम दाम पर सब देशों में सामान बेचना शुरू किया, जिसको मैंने आपको डंपिंग बताया था। इतना कम दाम पे जो प्रोडक्शन उसका महंगा था, लेकिन कम घाटा सह के। और वो घाटा कैसे पूरा कर रहा था? क्योंकि चाइना में जो है सरकार ही हर चीज का ओनर है। जितनी भी जो भी है वहाँ नेचुरल रिसोर्स या जो भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो है, सब का मालिक कौन है? सरकार। सरकार कहा ठीक है, हम खजाना से अपना घाटा सहेंगे, खजाना है मेरे पास ना सरकार का, उससे हम सहेंगे बर्तन। देखिए, कोई कंपनी के पास इतना बजट नहीं होता है जितना एक देश की सरकार के पास होता है। वो अपना देश का खजाना ही उसमें लगा रहा था घाटा सहने में, कि बर्दाश्त करेंगे, कौन टक्कर। देखिए, यही करता है अंबानी भी, मुकेश अंबानी भी यही करता है। अपना वो जियो का इसी तरह पक्की, वो क्या करता है, शुरू में जियो लाया, फ्री दिया सबको, फ्री फ्री फ्री। क्या उस समय उसको पैसा नहीं लग रहा था सर्विस देने में? फ्री का उसको मिल रहा था सर्विस? नहीं, लेकिन वो घाटा बर्दाश्त कर रहा था। इतना कैपिटल था उसके पास कि वो घाटा में सबको फ्री दे रहा था कि फ्री 4G यूज करो, ताकि सबके कस्टमर को खींच ले अपनी तरफ। और उसके बाद चार्ज लगा दिया कि इतना चार्ज देना पड़ेगा। अब सब लोग जब उसका कस्टमर बन चुके थे, आदत पड़ चुकी थी, तो अब जियो का लेना मजबूरी थी जब उसने उस पर दाम लगा दिया। तो चूंकि उसका इतना बड़ा कैपिटल है, उसने पूरे देश में टावर लगाए, ये किए, और अपना जो है सबको फ्री दिया शुरू में, और फिर सबको जब कस्टमर खींच लिया तो दाम लगा दिया उस पर। अब लोगों को आदत लग चुका, अब जियो का ही यूज करेंगे। इसके कारण एयरटेल ये सब को छोड़ के कोई कंपनी खड़ी नहीं हो पाई जियो के सामने। वोडाफोन ये सब की हालत खराब हो गई। अब वोडाफोन आइडिया बिक जाते कंपनी, इस कारण दोनों मिला के वी बनाए कि किसी तरह तो हम लोग, क्योंकि अकेले अकेले हम लोग इसके सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए दोनों मर्ज कर गए, वोडाफोन और आइडिया। एयरटेल भी बड़ा कॉम्पिटिटिव चल रहा है, इसके कारण अपना सर्विस का क्वालिटी इतना हाई रखे हुए है कि हालांकि कस्टमर्स उसके इतने नहीं हैं जितने जियो के हैं, कस्टमर्स काफ़ी कम हैं,
लेकिन फिर भी वो अपना सर्विस के कारण मेंटेन रखता है, क्योंकि उसका नेटवर्क और क्वालिटी सर्विस का बहुत अच्छा रहता है। तो यही हाल चाइना का है। चाइना ने क्या किया, सबका कस्टमर को खींच लिया अपनी तरफ, कम दाम पे सामान बेच। अब जब सबको आदत लग गई, सब मजबूर हो गया चाइनीज सामान। अब देखिए सब सामान चाइना में बनने लग गया, सब कंपनी चाइना शिफ्ट कर गई, सब कंपनी अपना प्लांट जो है चाइना और उसके आसपास के देशों में शिफ्ट कर दिया। जितनी कंपनी आप सोच सकते हैं, जो भी नामी कोई भी कंपनी, देखिए आगे दिया हुआ भी है कि फॉर एग्जाम्पल, तो यही देखिए, इससे पहले पिछले लाइन को देखेंगे। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू टुडे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज थे जहां इंडस्ट्रीज था बहुत, दे स्टार्टेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड विथ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज इन दोज कंट्रीज वेयर चीप लेबर फोर्स इज अवेलेबल। तो ये लोग जो है वहां अपना प्रोडक्शन करने लग गए जहां लेबर चीप था। इंडिया, सबसे पहले तो चाइना, चाइना के आसपास के देश, वियतनाम, ये सब में तो इंडिया से भी चीप है। चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान, और उसके बाद फिर इंडिया। इंडिया में भी इसलिए प्लांट लग गए हैं सबके बड़े बड़े, इंडिया से बाहर सप्लाई होता है सब। तो ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन चाइना और कोरिया। एंड देखिए, डाबर कंपनी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इस्टेब्लिशिंग फैक्ट्रीज इन इट्स नेबरिंग कंट्री नेपाल फॉर इट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स। हमारे यहाँ की डाबर कंपनी नेपाल में अपना फैक्ट्री लगा रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ लोग कम पैसा पर काम करते हैं। और डाबर ही नहीं, बहुत सारे हमारी कंपनी जो है वो अफ्रीका, एशिया के और देश, बांग्लादेश, ये सब देश हमारा बहुत सारा, आप क्या कहें, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है दुनिया की, मार्क्स एंड स्पेंसर, कपड़ों की कंपनी। मार्क्स एंड स्पेंसर जो है सबसे प्रीमियम कंपनीज में है दुनिया की कपड़े की। मुझे याद है कि जब मैं साल 2000 में, आज से कितना साल हो गया, 24 साल हो गया, साल 2000 में दिल्ली में एक ही उस समय मॉल था, मॉल की जैसा, उसको शॉपर स्टॉप कहते थे, अंसल प्लाजा था। शॉपर स्टॉप दो ही था इंडिया में, एक दिल्ली में था, एक बॉम्बे में था। उस समय मॉल नहीं हुआ करते थे। मॉल जो है 2003 के से आए थे, 3 में पहला मॉल बना था। तो 2000 साल में जब मैं अंसल प्लाजा गया शॉपर स्टॉप में, दोस्त के साथ मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो वहाँ मैंने देखा मार्क्स एंड स्पेंसर का एक शोरूम। मैंने कहा अरे भाई कौन सी कंपनी है, देखे नहीं, चलो देखते हैं। कपड़े की देखे कि कपड़ों का रेडीमेड कंपनी, गए उसमें, तो पैंट वगैरह देख रहे थे टंगे हुए, शर्ट पैंट ये सब। तो मैंने देखा पैंट का जो स्टार्टिंग प्राइस था 3500 रुपये, 3500 रुपीज उस समय, आज से 25 साल पहले। तो मैं तो दंग रह गया। मैंने सोचा कि भाई किस चीज़ का क्या ही लोग पैंट बनाते हैं कि 3500 रुपया स्टार्टिंग रेंज है, मतलब उससे कम दाम का था ही नहीं वहाँ पर। तो इतनी प्रीमियम कंपनी थी मार्क्स एंड स्पेंसर। आज उसका मैं बहुत सारा कपड़ा देख रहा हूँ, कहाँ बनता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्योंकि वो भी मजबूर है, इतना महंगा बेचेगा तो कौन खरीदेगा। भले जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो भी सोचते हैं कि कम पैसे में मिल जाए तो अच्छा है, सस्ता मिल जाए तो अच्छा है, पैसा ज़्यादा कोई नहीं खर्च करना चाहता। तो आज मार्क्स एंड स्पेंसर जो है बांग्लादेश से, और इसके कारण उसका सस्ते में दे रहा है, जितना पहले दाम था उतना दाम आज नहीं है। तो यही नहीं, मतलब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कपड़े वपड़ों के मामले में इंडिया और आसपास के देश, बांग्लादेश में भी बहुत अच्छा कम दाम पर अच्छा काम मिल जाए। आज इंडिया की बहुत सारे जॉकी वगैरह देखिए, ये सब वहां से बनवा रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब जॉकी का भी क्वालिटी डाउन हो गया। देखिए जॉकी का हम इधर लिए हैं कई चीज़, और वो जो है पहले की तरह क्वालिटी नहीं है। 1-1.5 साल पहले जो लिए थे, आज जॉकी में बहुत फर्क आ गया है।
अब हम लोग तो उस पर ब्रांड पर ले लेते हैं कि भाई विश्वास है कि भाई जॉकी तो दुनिया का उससे बढ़िया कोई है ही नहीं, उस किसी कंपनी दुनिया में जिसका इसका इससे बढ़िया और उतना इफेक्टिव रेट पर हो कम दाम में। और इसमें भी अब देखिए वो नहीं रहा है। तो खैर हर कोई दाम कम करने के लिए मजबूर है, क्या करें। तो चीप लेबर देखिए, जैसे यहाँ कहा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो चाइना में बन रहा है, कोरिया में बन रहा है। जितने कंपनी देखिए, पहले चाइना कोरिया था, अब कोरिया से छोड़ के दूसरा देश में, क्योंकि वहाँ उसको सस्ता मिल जा रहा है। इंडिया से लोग, और इंडिया की जो कंपनियां हैं वो और आसपास के देशों में जा रही हैं क्योंकि वहाँ सस्ता है। देखिए व्हेन द, आगे देखेंगे, व्हेन द मल्टीनेशनल कंपनीज get their related services from any outside when the multinational companies get their related services from any outside or foreign institution or group instead of own companies, then these services are known as outsourcing। इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। यानी जो कोई मेरा काम है, मैं एक कंपनी है मेरा, तो अगर कोई काम मैं अपनी कंपनी की जगह किसी दूसरी कंपनी से लेता हूं क्योंकि वो सस्ता दर पर करता है, तो इसी को कहा जाता है आउटसोर्सिंग, यानी अपना काम दूसरे को दे देना क्योंकि वो कम दाम में कर रहा है। तो कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, ये सब जैसे बताया ना आपको कि जापान की कंपनी, अमेरिका की फिलिप्स है, सोनी है, वो देखा कि अगर हम अपने प्लांट में बनाएंगे तो हमको महंगा पड़ेगा, हम चाइना के प्लांट में बनाएंगे या चाइना के कंपनी को दे देंगे बनाने का मेरे नाम से। आज देखिए, तो इसी को कहा गया आउटसोर्सिंग। आज हर कंपनी, जैसे देखिए आप कपड़े खरीदते हैं, लेवाइस है, लेवाइस या जितने बाहर की ब्रांड है, वो क्या बाहर यही बनता है, इंडिया में ही बनता है। जैसे लेवाइस का जितना जीन्स है जो आज 3000 4000 से स्टार्ट होता है, वो यही अरविंद मिल्स उसको बनाती है, अरविंद मिल्स को उसका लाइसेंस, वो लेवाइस के नाम से बिक रहा है, उसको ब्रांड का अपना बेचे रहता है। तो लेवाइस का जीन्स इंडिया में ही बनता है, दाम उसका बहुत ज्यादा है। लेवाइस ने खुद जीन्स ना बना के यहाँ का अरविंद मिल्स था उसको दे दिया कि भाई तुम बनाओ मेरे नाम से। एडिडास का, आपको क्या लगता है एडिडास का बाहर से बनता है? यही बनता है, पंजाब में कहाँ कहाँ बनता है, यही। नाइकी है, एडिडास है, सब जितना कंपनी है सब इंडिया में बनता है। दमन है, कहाँ कहाँ सब का फैक्ट्री है, वहाँ बनता है, पंजाब में बनता है, दमन में बनता है। हाँ, तो नाइकी भी अमेरिका का है, नहीं यहाँ बनता है। तो वही मैं बता रहा हूं कि जितनी भी कंपनियां, इसी तरह से वो उन्होंने आउटसोर्सिंग यूज किया। आउटसोर्सिंग मतलब सोर्स आउट कर दिया, बाहर से लेने लग गया क्योंकि अपना बनाना महंगा पड़ने लग गया। अब अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में बनाएगी महंगा पड़ेगा, वो बोला क्यों अमेरिका में बनाए, इंडिया में बनाओ और वहीं बेचो, इंडिया में आसपास के देश में वहीं बेच लो, लाने ले जाने का भाड़ा भी खत्म और सस्ता वहाँ बन भी जाएगा। हाँ, क्वालिटी वो देखते हैं। जैसे जॉकी का है, तो जॉकी का कंपनी है इंग्लैंड की है, तो क्या या जहाँ इंग्लैंड है अमेरिका जहाँ के, तो थोड़े वहाँ बनता है, सब इंडिया में ही बनता है। यही बनता है पंजाब में, गुजरात में, जहाँ तहाँ बनता है। तो उसको वो कंपनी कहती कि हाँ आप मेरा क्वालिटी मेंटेन करना होगा आपको थोड़ा, तो क्वालिटी उस तरह से मेंटेन करता है। तो जितना भी हम ये देख रहे हैं, जैसे जॉकी है बाहर का कंपनी, तो थोड़े वो बाहर यहीं बनता है, सब कहाँ बनता है। तो इस तरह हर कंपनी आउटसोर्सिंग करने लग गया है ना। आउटसोर्सिंग क्या है? व्हेन द मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल मतलब जो कई देश में काम करते हैं, व्हेन द मल्टीनेशनल कंपनीज, इसको शॉर्ट में एमएनसी इसी को कहते हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी। When the MNCs get their related services from any outside or foreign institution or group instead of own company, यानी अपने कंपनी के छोड़ के किसी दूसरे ग्रुप से, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन या किसी दूसरे कंपनी से वो काम लेते हैं,
then these services are known as outsourcing. बैंगलोर क्या है? बैंगलोर आउटसोर्सिंग का अड्डा है। जितना अमेरिका का और यूरोप का काम है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, वो सब कहाँ आने लग गया? बैंगलोर। आज आप विश्वास करेंगे, बैंगलोर एक शब्द बन गया है वहां की इंग्लिश में आउटसोर्सिंग के लिए। बैंगलोर आज वहां शहर के नाम की तरह नहीं लिया जाता है, वहां आउटसोर्सिंग की जगह शब्द हो गया बैंगलोर। कि तुमने बैंगलोर नहीं किया इसको, मतलब आउटसोर्सिंग नहीं किया, यानी बाहर किसी को काम नहीं दिया। क्योंकि बैंगलोर एक इतना बड़ा हब के रूप में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर फील्ड का बना, सारा बैंगलोर में यहाँ की कंपनियां तो हैं ही, लेकिन यहाँ की भी जो कंपनियां हैं वो कहाँ काम किसके लिए करती हैं? वहाँ की कंपनियों के हैं। अमेरिका है, जितने देश आप जान रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, जो भी देश आप जान रहे हैं, तो बैंगलोर शब्द आज उनके लिए आउटसोर्सिंग का दूसरा सिनोनिम हो गया। क्योंकि बैंगलोर कंपनियों का अड्डा है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर कंपनीज का, और ये कंपनियां किसके लिए काम कर रही हैं? ये इनको काम मिल रहा है वहां से, अमेरिका से, यूरोप से, ठीक है, वहां से काम मिलता है। तो ये हो गया आउटसोर्सिंग, ठीक है। देखिए, चलिए आज आउटसोर्सिंग तक ही रहने दीजिए, इसके बाद इसमें है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कॉल सेंटर वगैरह आएगा, ये सब आएगा। चलिए, तो आज यहीं आउटसोर्सिंग तक हम लोग रखते हैं। इसको आप फिर से पढ़ के, मैं कह रहा हूँ थ्योरी है, समझ लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अभी कर रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिएगा, जल्दीबाजी में छोड़ के आगे नहीं बढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ बार, अच्छे से समझते हुए थ्योरी को बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ये देखिए, आप ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो करंट में हो रहा है हमारे राज्य में, हमारे देश में, दुनिया में, तो आपको मेंस में सवाल या करंट इससे, अब इस सब से आएगा, इसमें भी आएगा आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पीटी में भी आएगा, मेंस में तो आएगा ही आएगा, आता ही है, हर साल आ रहा है मेंस में, ग्लोबलाइजेशन से, और फिर इंटरव्यू में आएगा। तो बहुत समझते हुए, इसको प्रैक्टिस करते हुए, क्वेश्चन वगैरह मैं जो कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लीजिए, वो प्रैक्टिस करके, और जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इकोनॉमिक का, उसको कोशिश करिएगा जुड़ा हुआ टॉपिक से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस।